Hi guys, I'm Manju Gill. Welcome to Learning English Decoded. Like I suggested, this channel is all about making you learn the basics and logic behind each of the 4 foundational skills of English: reading, writing, listening and speaking. Now the first chapter, the first video or the first lesson you can say that I'm going to tell you about is the very basic of English language, alphabet. You all must be wondering, of course, I know what is ABCD, what is she going to tell me? There is a difference. Today, I'm going to tell you about the sound that we use behind these alphabets in order to identify the Hindi sound. In English, there are 26 alphabets, but in Hindi, how many varn are there? Do you know? There are 49 varn, 49 alphabet in Hindi Varnmala. That means there are 49 different sounds in Hindi. यही 49 वर्ण की जो साउंड है वो बाकी इंडियन लैंग्वेजेस में भी इस्तेमाल होती है, जैसे कि मराठी, पंजाबी और अदर लैंग्वेजेस. अब इस साउंड को हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए वर्ड्स कैसे बोलने हैं और लिखने हैं, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू इन टुडेज वीडियो. सो अल्फ़ाबेट, writing and pronunciation. In speaking English, you have to have a very good hold over the sound of the vowels and consonants. There are 5 vowels in English language: A, E, I, O, U, and the remaining 21 alphabet are called consonants. Today we will be discussing all of these 26 alphabets and understand these sound when we pronounce these, and how to make use of those alphabet in identifying these sound and making it into proper words and making sure that we don't make any mistakes. Let's start with A. Now the sounds of Hindi Varn or the other Indian languages that comes behind A is A, A and A. How is that possible? You must be wondering. Let's understand this through some examples. If I write apple, which is the very first word that we learn in nursery, A for apple, how do I write it in Hindi? Apple. Let's say I talk about arm. How do I write it in Hindi? Arm. If any other word that you have in your mind that starts with A and has a sound different than these, pause the video, think about those words and make a note of it. It's very necessary to understand the logics and try and memorize these logics. For example, any skill that we want to learn takes some time. Let's say I want to lose weight, or let's say you want to learn guitar, or let's say somebody wants to learn cooking. It's not going to happen in one day. It is a process. Anybody who says that you can lose weight in 2 days or you can learn cooking in 1 day, I don't know, that might just be a marketing gimmick. So to kind of achieve any skill or to achieve any goal, you need to go step by step. And this is the first step that we are taking today. So A, apple, arm, or anything, let's say astronaut. That's your work to understand. यहाँ पे A आएगा या A आएगा. Next we come to B. B में जो sound है वो एक वर्ण का है, which is B, right? For example, I write bat. I write books. The sound will be B, B, but with an add-on of a matra of U or A, right? Next comes C. Most of the alphabets in English, you will see that you have more than 2 or 3 वर्ण. हिंदी वर्ण 2 या 2 से अधिक आएंगे. वो इसीलिए क्योंकि उसकी साउंड जो है हिंदी वर्ण में अलग वर्ण से डिफाइंड है, लेकिन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हमें उन्हें कंबाइन करना पड़ता है. That is a tricky move, but I will make sure you learn it. C. C में क और स दोनों की साउंड आती है.
कैसे? A for apple, B for bat, C for cat. Cat will be written like this. So here comes my K. But if I have to write cement, what is the spelling of cement? It starts with C. C-E-M-E-N-T. But in Hindi, it is written as cement. So you have sound of S and you have sound of K. Hence, K and S. Right? Any other example in your mind? Make a note. Next comes D. I know you must be feeling a little tedious, but trust me, if you go from A to Z with me today, you will have a very good base to make sure that your writing and your reading and your speaking skills enhance a lot. D. D has sound of D and D. कैसे? D से अगर मुझे A for apple, B for ball, C for cat, D for doll. अगर मुझे doll लिखना है या मुझे डॉन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी. तो डॉन बोलने में साउंड कौन सा हमारा आ रहा है? जो फर्स्ट साउंड आ रहा है दैट इज डी. ये हमारा कवर हो गया. अब हमारा एक साउंड आता है द का. द से आप कोई भी हिंदी का वर्ड सोचिए अभी अपने माइंड में, जैसे कि दवाई या दरवाज़ा. अगर मुझे इस वर्ड को इंग्लिश में लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? दवाई या फिर दरवाज़ा. अब इसको अगर मुझे इंग्लिश में लिखना है, मैं कैसे लिखूंगी? DARWAZA, DAWAAI, दवाई. और इंग्लिश का कोई वर्ड है जो मुझे द से शुरू होता है और उसको मुझे समझना है कि यहाँ पे द का साउंड कैसे आ रहा है. सोचिए. फॉर एग्जाम्पल, हमें एक वर्ड है एंड इट्स अ वेरी फेमस टूरिस्ट प्लेस इन इंडिया, दार्जिलिंग. वी राइट इट एज DARDAE, Darjeeling, right? And in Hindi, if I write it, it will be like Darjeeling. So this is how the trick goes. You need to know the sound to understand the alphabet and use it for writing and speaking. The next alphabet is E. E and A. How is that possible? Let me give you an example. Eat starts with E, sound of E, right? And what about A? Elephant. How will I write it? Elephant. So, did you get the trick? A has a, A, B has b, C has k and s, D has d and the, and E has E and A. I have heard so many things about English, that English is a very tough language, English is a very funny language, English is a language that I don't know anything about. So, continuing the basic of English language, let's talk about the alphabet F. F में जो साउंड है वो हिंदी वर्ण फ की होती है. जैसे कि I came first in my class, I stood first in the race, and this will be written as first, right? So F for first. Sound clear? Stop the video, rethink about the previous alphabets till F, try and understand or gather a word from the sound which I have taught you about, and then continue it forward. G. G. सुनने में, बोलने में ही you get the first round of j with a matra of e. Hence,
जी में ज की साउंड भी होती है और लिखने में ग की साउंड भी आती है। कैसे? देयर इज अ वर्ड गैम्बल, शुरू किससे हुआ? जी से। साउंड किसकी आ रही है? ग की। डू यू नो गैम्बल का मतलब क्या होता है? गैम्बल मीन्स जुआ, राइट? ज की साउंड कैसे आ सकती है? इफ आई हैव टू राइट जेम्स, जेम्स चॉकलेट भी होती है खाने की, और जो हीरे जवाहरात होते हैं उनको भी जेम्स कहा जाता है, राइट? जेम्स को अगर मैं हिंदी में लिखती हूँ तो ये ऐसे लिखा जाएगा। सो साउंड ज की आई, यहाँ पर साउंड ग की आई। So you need to understand that whenever there is a sound of g or j, the word will start with g. Next comes h. Very important alphabet. Why? Because all of us live in houses, we have our own homes, and it starts with h. Sound is 1, h. Examples that I just told you about: house, home, Howard. Each of these words will be written in Hindi with the varn h, hence the sound h, right? Next comes I, a very tough alphabet. There is a lot of things that you need to understand with I. Sounds of E, badi E and I. How come? I'll tell you. India, written like this. What we learn in our kindergarten? Ice cream, sound of this. So E, I की जो sound होती है वहाँ पे alphabet आपका 99% I से शुरू होता है. Next comes J. A for apple, B for ball, J for jug और जोकर कैसे शुरू होंगे? ज से शुरू होंगे, राइट? सो इसी तरह से आपको जब भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो कि ये जो वर्ड मैं सुन रहा हूँ या मैं लिखने वाला हूँ, व्हाट इज़ द करेक्ट अल्फ़ाबेट जिससे ये स्टार्ट होगा, या फिर आगे इसमें इस वर्ड को मैं कैसे ब्रेक डाउन करूँ और कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करूँ ताकि मेरी स्पेलिंग करेक्ट हो. Stay connected with me. All these things I will be taking care of today itself. Now let's talk about the alphabet K. K में जो sound है वो क का आता है. Think of some words that start with K. I think the first word that comes to mind is kites. It was also one of the very famous Bollywood movies which tanked at the box office. But K, अगर मुझे kites को हिंदी में लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी. और another word with K is, if you think this video is boring, what would you want to do? You would want to kill me. So kill. Again the sound is K. Moving on to L. L, अगर हम L जो अल्फ़ाबेट है उसको हिंदी में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हिंदी में L ऐसे लिखा जाएगा, राइट? लेकिन जो साउंड है वो कौन से वर्ण का आएगा? L का आएगा. सॉरी, साउंड कौन से वर्ण का आएगा? ल का आएगा, राइट? फॉर एग्जाम्पल लाइट्स, lion, or you just killed me, but some of the people who might love this video would love me. So L, L, L. हिंदी में कैसे लिखा जाएगा? lights, lion, love. L, L, L. L, L, L. Hence L. Coming to M. This is a very good alphabet because we have reached the midway of all our alphabets. आज के वीडियो का मिड है,
M, 13th अल्फ़ाबेट। M में म का साउंड आता है, लाइक माई नेम मंजू। हिंदी में मंजू, म का साउंड। इसी तरह से माउंटेन्स, राइट, माउस, M से शुरू होते हैं, म का साउंड आता है। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग N। N इसीलिए क्योंकि उसमें न और न दोनों हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, अंडरस्टैंड दिस। लेट्स से आई राइट हिंदी वर्ड। हम सबने बचपन में देखी है रामायण, महाभारत, बहुत सारे माइथोलॉजिकल हम लोगों ने नाटक देखे हैं। उसमें एक कैरेक्टर है नारायण, नारायण। सो न से शुरू होता है और न पे ख़त्म होता है। इंग्लिश में अगर मुझे लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगी, इट स्टार्ट्स विद एन, इट एंड्स विद एन, लेकिन न की साउंड है और एंड में न की साउंड है, राइट। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द डिफरेंट साउंड्स। वो वर्ड स्टार्ट भी हो सकता है उस साउंड से, उस वर्ड के बीच में भी उस अल्फ़ाबेट की साउंड हो सकती है, एंड दिस इज एग्जैक्टली द बेसिक दैट यू नीड टू नो to make sure that your pronunciation and your writing skills are to the T, right? Next is O. O, for example, I have to write open house. O आ गया, right? I went to McDonald outlet, right? U की sound आ गई। To, यहाँ पर O में U की sound है, right? So this is how you need to understand the sound behind each alphabet and also need to understand how exactly that sound is making you pronounce a particular word. ये आ गया तो समझो इंग्लिश का बेसिक आ गया। Let's talk about the alphabet P. P में साउंड प का आता है। Let's understand with an example. पेपर, पेपर को हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा। एक और एग्जाम्पल, पपाया। काफ़ी लोगों को पसंद है, आई रियली डोंट लाइक पपाया। पपाया विल बी रिटन लाइक दिस। सो साउंड पी में प का आता है, राइट। नेक्स्ट इज क्यू। हाउ डू वी राइट क्यू विद हिंदी? क, क्यू, थोड़ा कन्फ्यूजन है। इट्स रिटन लाइक दिस, क्यू। क का साउंड आता है, आधा क से बना है, क का साउंड है। फॉर एग्जाम्पल क्वीन, काफ़ी लोगों ने देखी होगी, कंगना रनौत की मूवी है। अगर मुझे इसे हिंदी में लिखना है तो क्वीन। अनदर वर्ड क्विल्ट। क्विल्ट क्या होता है? क्विल्ट का मतलब होता है रजाई, quilt. So sound is k, right? Another next alphabet is R. R में र की साउंड है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे और रिंग, रोज। पॉज करो, थोड़े से वर्ड्स लिखो और समझो, राइट। लेट्स कंटिन्यू टू द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट, S. वेरी ट्रिकी। वाई? हिंदी में स, श, श ये सब होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स होता है, श होता है, श होता है। इंग्लिश में स की साउंड के लिए सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है, S। तो हमें अगर ये साउंड बनाना है या ये साउंड है तो हम कैसे मैनेज करेंगे? वेरी इजी। इसके लिए आपको S के साथ H लगाना है एंड इसके लिए भी आपको S के साथ H लगाना है। स से कोई भी वर्ड लेकर के आइए अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल साइंस, स, राइट। श से कोई भी वर्ड लेके आइए अपने माइंड में। फॉर एग्जाम्पल शूज, SHOES। ये दो अल्फ़ाबेट्स को मिला के
श का साउंड बनता है, सिंगल एस से स का साउंड बनता है, राइट। इसी तरह से जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं या जो वर्ण हैं जिनमें एक ऐड ऑन आ रहा है, जैसे हिंदी में क ख ग घ होता है, राइट। यानी कि जैसे हमने इससे पहले आपको बताया था, के लिए तो क का साउंड है, लेकिन ख के लिए क्या साउंड होगा? ख के लिए साउंड होगा के एच। ये भी बेसिक्स मैं आज ही आगे आपके साथ कवर करूँगी। एस के बाद आगे चलते हैं टी पे। टी पे ट का साउंड है। मैं ये टॉपिक अब क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि ट ठ ड ढ श श ह क ख ग घ, राइट, ये वर्ण हैं हिंदी के जिनमें एडिशनल साउंड्स आती हैं। टी में ट की साउंड आती है, जैसे कि क्या टाइम हुआ है, राइट। आपका टेस्ट कब है? टी से शुरू, टी पे ख़त्म, ट से शुरू, ट पे ख़त्म, राइट। सो ये साउंड है जो आपको अपने माइंड में रखनी होंगी, थोड़ा हेर फेर करना होगा, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शंस करने होंगे, एंड आपकी पकड़ प्रोनाउंसिएशन पे और वर्ड्स को लिखने में बहुत मजबूत हो जाएगी। ऑलमोस्ट द एंड ऑफ साउंड फॉर अल्फ़ाबेट्स। लेट्स टॉक अबाउट यू। यू में अ, उ और यू की साउंड आती है। आई विल टेल यू हाउ। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये 3 वर्ड्स लिखती हूँ, कप, पुल और यूनिट। आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग, 1 सेकेंड। कप, पुल, यूनिट। कप, पुल, यूनिट। यहाँ आपको यू की साउंड आएगी, यहाँ आपको ऊ की साउंड आएगी और यहाँ पर आपको अ की साउंड आएगी, राइट। नेक्स्ट इज वी। सी द कैची थिंग इज वी एंड डब्ल्यू 2 अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन साउंड दोनों में व की आती है। कैसे? इन दोनों को हम एक साथ समझते हैं। वैन, वॉच, लेट्स से अनदर वर्ड, वॉल्ट और वुमेन। वैन व की साउंड आ रही है, वॉल्ट व की साउंड आ रही है। इसका मतलब होता है गाड़ी और इसका मतलब होता है जो बैंक में तिजोरी होती है जहाँ सबका सामान और जेवरात रखे जाते हैं। वॉच घड़ी, वुमेन नारी। यहाँ, यहाँ और यहाँ। अगर मैं इन वर्ड्स को हिंदी में लिखूंगी, फॉर एग्जाम्पल वैन, वॉच, तो व, राइट। सो इंग्लिश में वी और डब्ल्यू का अलग इस्तेमाल हो रहा है, बट साउंड जो है, जो प्राइमरी साउंड है, वो व की आती है। नेक्स्ट वी गो टू एक्स। एक्स बोलने में आप ए, क और स इन तीनों का इस्तेमाल करते हैं। एक्स-रे, राइट। नेक्स्ट इज वाई। वाई इज दिस वीडियो कमिंग टू एन एंड। य की साउंड आती है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कोई भी अपना माइंड में वर्ड ले लीजिए। वाई इज ही येलिंग एट मी? येल, साउंड आया य का, राइट। या फिर हम यॉट पे गए, अगेन साउंड। नेक्स्ट इज जेड और जी, साउंड इज Z. Please try and use your tongue in a way that you come out with the sound of Z, not J. आप एक वर्ड बोल के देखिए, आपको J और Z की जो साउंड्स हैं उनमें डिफरेंस आराम से समझ में आएगा। एंड द वर्ड इज जहाज। अगर आप इसे जहाज बोलते हैं तो ये प्रोनाउंसिएशन गलत होगी। द वर्ड इज जहाज। हिंदी में अगर मुझे इसे लिखना है तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी,
right? J and Z. So in today's lesson I have tried my best to make you understand कि कैसे हम sounds को इस्तेमाल करके words को लिखना सीख सकते हैं, words को pronounce करना सीख सकते हैं, so that हमारी writing और हमारी speaking skills जो हैं वो better हो जाएं. Now, taking forward the logic of the sound that we have just learned about all the alphabets from A to Z, let's learn about the Hindi matras and how we are going to use it for forming words in English. For example, let's take the word, the first one, ka. Ka in English will be written as Ka. Now, the question would be, won't it be pronounced as ka? No. In Hindi also, if I have to write ka, it is with the sound of a, right? Hence, K and A. Talk about any Hindi word, let's say ka se kabutar. If I have to write in English, it will be written as kabutar, not. No. I need to have that a sound, hence K-A. Ka. The sound that you thought is here is actually this sound. This would be K-double-A. Any Hindi word? Kagaz. It will be written as this because there is ka plus a, hence K-A-A. Kagaz, that is the sound. Ka with a choti e ki matra, that is in English ki. Badi e ki matra, K double E. Ka chote u ki matra. Think about it. You have to kind of process all the sounds, all the matras in your mind and start applying the same logic about it. Okay, she's talking about ku. Ku, ka, u, यानी कि छोटा ऊ, छोटे ऊ की मात्रा यू. हिंदी नेम कुणाल. अगर मुझे इसको बड़े ऊ की मात्रा के साथ बनाना है, then the name will be Kunal. So Ku is double O. ए की मात्रा के. केदारनाथ. केदारनाथ, राइट? सो ए की मात्रा में के एंड ई आएगा. डबल ए की मात्रा के ए आई. सिंगल ओ की मात्रा को. डबल ओ की मात्रा के ए यू. काउ. कंग. कह. अब ये जो मैंने आपको तरीका बताया है, ये जो मात्रा समझने का जो एक लॉजिक है, इसको आप बाकी हमारे जितने भी वर्ण हैं उनके साथ एक बार एडजस्ट करके देखिए. क, ख, ग, घ. एक और एग्जाम्पल, जैसे ये क है. अगर मुझे क को यहाँ ग लिखना है तो दैट विल बी G प्लस ए. रिमेंबर मैंने आपको बताया था कि G में ग की साउंड आती है. सिमिलरली ग अगर है तो G प्लस ए हो जाएगा. गा, G डबल ए. गी, के की जगह G, के की जगह G, के की जगह G. इस लॉजिक से आप सभी वर्ण के साथ सभी मात्राओं की जो एक साउंड है और जो उसे लिखने का तरीका है, हाउ आर वी गोइंग टू यूटिलाइज दैट व्हेन वी आर राइटिंग समथिंग इन इंग्लिश or trying to understand what exactly would be the spelling of a particular word. This is the logic, and there is not going to be anything beyond this except for one thing, wherein you need to understand the sound of all alphabets. K is K, and what is K? K is written like this but K H. So
K, if I have to write here, so it will become K, and Kha will become KHAA. For example, Khandan. So this will come. Similarly, G is G. If I have to write G, then it will be G plus H. G. Everybody in North India loves ghee. 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 So this is the logic for making sure that you understand all the logics, all the sounds and all the matras, and in a way understand what exactly the word can be. If you are able to grasp KA, KAA, KI, double E, where exactly double O or U or O or KO will be used, you'll be able to crack all the spellings and you will excel in writing skills. So we discussed about all the sounds for all the alphabets from A to Z. Now, taking it forward, I am going to tell you about another rule of English wherein 5 of the alphabets are called vowels and the remaining 21 are called consonants. इसके पीछे rule क्या है? Whenever there is a word which is starting with any of these vowels or sound of these vowels, it is followed with an. And any word which starts with these alphabets or sound of these alphabets follows with a. Example, apple, elephant, ice cream, owl, umbrella. In normal routine, whenever you are using any word which starts with A, E, I, O, U, you will be speaking it as I ate an apple today. I saw an elephant. I want an ice cream. There is an owl on the terrace. It's raining. I need an umbrella. So these and इसका आपको बहुत ध्यान रखना है कि वॉवल्स की अगर साउंड भी आ रही है, although the word is starting with any of these alphabets, the sound when you speak that word is of a vowel, you will follow it with an. For example, honest man. It starts with H, but when you say it, an honest man, you use O. O is a vowel, hence an honest man, right? Consonants, any of these consonants, sound of these consonants, a. There is a boy in my class that I really like a lot. I need a kite, I really want to fly it. I need a ring. So that's the logic. So all these consonant, whenever you are using for any word followed by a and the, a and the, these are called as the articles. The is used when we are talking about something very specific, very proper. For example, I go to the college which is 5 kilometers away from my home. I go to the college, because I am talking about a specific college and I am giving you an indication about which college I am talking about. Hence, a and the. I hope you will now be able to use a and the very aptly. Thank you. Now we are going to learn about the correct usage of capital letters. Very important for writing skills. Of course, when we are speaking, nobody is going to ask you whether you are speaking about your weekend or how did you spend your Sunday. Sunday में S capital है या small है. But whenever you are writing a letter or you are writing an exam, everybody is going to focus on their writing skills. Where to use comma, where to use colon, where to use a capital letter, where to
not use a capital letter. So now we are going to talk about all the 23 rules. Yes, it might sound very amazing or very surprising, but there are 23 rules about using the capital letter. For my friends who are not able to understand the difference between capital and small letter, this is small a, this is बड़ा a, जैसे हम बचपन में सीखते थे. This is a capital letter. Now you must be thinking, where exactly is this confusion and why am I going to use a capital letter? Stay with me, go through all the 23 rules that I'm going to talk about, and you will be thanking me about it. The first very important rule is, whenever we are talking about any day or month, we must start the word with capital letter. Sunday, Monday, or let's say January. If you are using it in a sentence, let's say you're talking about I had a fun Sunday. मेरा संडे बड़ा ही मज़ेदार था. यहाँ पर आपका जो S है वो कैपिटल आएगा. आप देख रहे हैं पूरा सेंटेंस हमने लिखा है सारे स्मॉल अल्फ़ाबेट से, संडे का S कैपिटल है, राइट? Similarly, let's try and use a month. I was born on 5th November. N small है, November का capital है. So whenever you are talking about any specific day or month, you have to start it with capital letter. Now, the second rule is, when I is written in a sentence as standalone and then O is used as an interjection. How? I. My friend asked me if I was right. मेरे फ्रेंड ने पूछा अगर मैं ठीक थी या नहीं. I. आपने एक सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी I का इस्तेमाल किया है वो कैपिटल में लिखा जाएगा. O को जब हम इंटरजेक्शन की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ओ गॉड आपने बोला, आप इसको अगर कहीं पे भी किसी सेंटेंस के बीच में यूज़ कर रहे हैं, O will come as capital. The third rule is, whenever we are talking about God or we are using a pronoun for him. For example, I start the sentence as, God is everywhere and he blesses us. आपने and के बाद he यूज़ किया है, लेकिन आपको ये कैपिटल लिखना होगा. Why? Because God is a noun and you are using he as a pronoun for God. That's why this will be capital. Or you are talking about any name of God, then also it will be capital. But if you are talking about a boy, let's use it in a sentence. My friend was talking about a boy and he blah blah blah. This he will be small. Now the fourth rule, which all of us follow without any knowledge about it, but because we have been writing English since nursery, we have been told that whenever you are starting a sentence, it has to start with a capital letter. My name is Manju. I love traveling. My
right? This is the starting of a sentence, hence M is capital. You remember previous rule that I told you about? The second one, whenever you are using I in a sentence, it will always be capital. यहाँ दोनों rules use हुए हैं, full stop के बाद भी है और I भी है. यहाँ पर I की जगह अगर और भी कोई word होता, for example somebody is referring about someone and this was she, तो भी S capital होता. Fifth rule is, whenever we are talking about any proper noun or proper adjective, the first alphabet will always be capital. For example, let's say we are talking about Ram or we are talking about India Gate, proper nouns referring to somebody. Stay connected with me because I will be covering about noun, pronoun, parts of speech, all 8 parts of speech in the upcoming videos. With proper noun and also with proper adjectives. For example, I love Indian food. I really feel that I should learn French. It will be capital. Sixth rule is, whenever we are writing a poem, the first alphabet of the poem and the words that are there in the lines, it will be capital, like Johnny, Johnny, yes, Papa. So J, Y and P, these will be capital letters. Seventh is, wherein we are talking about nouns, let's say, whether it is a name of any newspaper or mountain or any river or ocean, these will be written as capital letters, the entire name, first alphabet of the word. For example, Qutb Minar, Q and M, capital. Which newspaper do you read? I read the Hindustan Times. This is the name of the newspaper. So every word of the name, first alphabet will be capital. Rule number 8 of using capital letters suggests that whenever we are talking about any holy book, for example, we are talking about Gita or we are talking about Bible or we are talking about any other historical scripture, then capital letter will be used when we are talking about the name. For example, Gita is the holy book of Hindus. Gita में G हमेशा capital आएगा. The next rule states, which is rule number 9, that whenever we are talking about any ethnic terms like South Indians, North Indians or Sikhs, तो ये शब्द हम कभी भी सेंटेंस में कहीं पे भी इस्तेमाल करेंगे. The first alphabet of all such ethnic terms will always be capital. The next rule is that whenever we are talking about any season or any events or any era, we need to use the capital letter. For example, let's talk about Stone Age or World War or Christmas night. हम जब भी ऐसे references देंगे, the entire name of that particular reference or that particular event or that particular season will always be in capital letter. Rule number 11 states that whenever we are talking about any direction or any compass points, जिसे हम दिशा सूचक भी कहते हैं. For example, where are you headed? I am heading up north. So in up north, U and N both will be capital. Rule number 12 is, whenever we are talking about any government organization or a political party, the name will always be in capital letters. For example, I have a bank account in State Bank of India. IBS, all capital. The next rule is, whenever we are using common noun with a proper noun. Do not worry, in my upcoming videos I will be taking
care of all these basics of grammar about what is noun, what is pronoun, what are the types of noun, parts of speech. All 8 parts of speech will be covered in a separate video. Today let's focus on the usage of capital letter to make sure that your writing skills are improved. Now common noun, just a little basic about it. वो संज्ञा या वो नाम जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट माई फादर, माई मदर, माई अंकल. सो दीज आर कॉमनली यूज्ड नाउन्स. नाउ अगर हम इस कॉमन नाउन को किसी प्रॉपर नाउन के साथ यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मदर टेरेसा. मदर टेरेसा अगर हम किसी भी सेंटेंस में लिखेंगे तो मदर और टेरेसा का एम और टी दोनों कैपिटल होंगे. वाई? बिकॉज ये कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है. एंड वी डिस्कस्ड इट कि जब भी हम प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हैं, किसी भी जगह के नाम के बारे में बताते हैं, किसी माउंटेन के नाम के बारे में बताते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, तो ये प्रॉपर नाउन्स हैं. वहाँ तो ये कैपिटल होगा ही, लेकिन इसको हमने इसके साथ जोड़ के इस्तेमाल किया है, इसीलिए ये भी पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल आएगा. Rule number 14 states that whenever we are using words with numbers, then it will be capital letter. How? For example, meet me at gate number 9. Get me volume 2 of this particular book. सेंटेंस में जब भी यूज़ करेंगे ये कैपिटल लेटर में आएगा. नेक्स्ट रूल इज whenever we are talking about any particular political party, या हम किसी संप्रदाय के बारे में बात करते हैं, तो भी हमें उसके नाम के आगे का जो पहला अक्षर है वो कैपिटल यूज़ करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से द रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स जॉइंट हैंड्स. तो यहाँ पे रिपब्लिकन का आर और डेमोक्रेट्स का डी दोनों कैपिटल होंगे. द नेक्स्ट रूल इज डायरेक्ट स्पीच का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होगा. डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच आई विल बी टेकिंग इन दी अपकमिंग वीडियोज, सो मेक श्योर दैट यू आर कनेक्टेड विद मी एंड यू आर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज. नाउ डायरेक्ट स्पीच में फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक harm is done by Rohan? Asked X to Y. D A. इस तरह से. The next rule is about personified objects, wherein we are talking about anything. Oh God, we made it. So you will be writing, oh God, we made it. This W will also be capital. The next rule is about usage of on and up as adverb. जब भी हम on या up को as adverb इस्तेमाल करते हैं तो on और up में o और u. तो ऑन और अप में ओ और यू कैपिटल होता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल एज अ प्रेपोजिशन किया गया है तो ये कैपिटल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट विद ऑल माई हार्ड वर्क आई एम मूविंग अप इन दी फर्म. यानी कि यहाँ मैं प्रमोशन की बात कर रही हूँ. बट इफ़ यू आर सेइंग दैट यू आर क्लाइंबिंग अप द लैडर, यानी कि आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्लाइंबिंग अप छोटा रखेंगे, यहाँ पे यू कैपिटल में इस्तेमाल होगा. वाई? बिकॉज यहाँ वो एडवर्ब है और यहाँ पर वो प्रेपोजिशन है. डू नॉट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट एनीथिंग. टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक श्योर दैट वी आर यूजिंग द करेक्ट अल्फ़ाबेट. कैपिटल लेटर का इस्तेमाल कैसे होना है. Verb, adverb, preposition, noun, pronoun, everything will be covered in the upcoming videos. Let's talk about the next rule. Now we've reached on rule number 19. This rule states that whenever we are talking about any book, its name or any of its chapters, it will start with a capital letter.
But if in the name there are prepositions or there are articles or conjunctions, those will be small. For example, let's say we are talking about English grammar today. Let's take an example of a name of an English grammar book, arrangement of nouns and verbs. ए छोटा है, ओ छोटा है, बट ए, एन एंड वी ये कैपिटल रहेंगे बिकॉज दैट्स द नेम ऑफ द बुक. प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स सब स्मॉल रहेंगे. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम्पल दिया था जिसमें स्टेट बैंक का एस, बैंक का बी, आई का, इंडिया का आई बड़ा था, कैपिटल था, लेकिन ऑफ का ओ छोटा है बिकॉज ऑफ this rule. The next rule is whenever we are talking about any particular festival or any historical day, or we are referring to any event that happened in history and it is of some significance, we will start it with a capital letter. For example, Diwali, Independence Day, क्रिसमस और कारगिल वॉर, ये सब सिग्निफिकेंस रखते हैं. कुछ फेस्टिवल है, कुछ हिस्टोरिकल रेफरेंस है, कुछ पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं. तो इन सभी में इसको हम कहीं पे किसी भी सेंटेंस में यूज़ करेंगे, बीच में करेंगे, बाद में करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे, बट द फर्स्ट अल्फाबेट विल ऑलवेज बी कैपिटल. द नेक्स्ट रूल इज whenever we are talking about any particular industry, that means a proper noun, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आर और इंडस्ट्रीज का आई दोनों कैपिटल होंगे. हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एच कैपिटल, यू कैपिटल एंड एल कैपिटल. लेट्स कम टू नेक्स्ट रूल नाउ. We are coming almost to the end of these rules, so stay connected. Rule number 22 is whenever there is a sign of exclamation, the word will always be in capital. For example, oh God, O capital. Although हमने यहाँ पे exclamation लगाया है, यहाँ पे G इसीलिए कैपिटल है क्योंकि वो नाउन है. We are talking about God. अगर मुझे लिखना होता O V1 तो V छोटा रहता, W छोटा रहता, बट O विल बी कैपिटल. मोस्टली एक्सक्लेमेशन मार्क्स का जो यूसेज होता है वो सेंटेंसेस के बिगिनिंग में होता है. सो जनरली इट्स अ वेरी इजी रूल दैट व्हेनेवर देयर इज एन एक्सक्लेमेशन मार्क इन द बिगिनिंग ऑफ एनी सेंटेंस, द फर्स्ट अल्फाबेट विल ऑलवेज बी कैपिटल. जस्ट लाइक द रूल वेयर इन एवरी अल्फाबेट एट द स्टार्ट ऑफ अ सेंटेंस आफ्टर अ फुल स्टॉप, यानी कि आपने कुछ लिखा, फिर फुल स्टॉप और आपने द लिखा, टी कैपिटल, फिर आपने कुछ लिखा और फिर आपने वॉच लिखा तो डब्ल्यू कैपिटल. सो फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है, वर्ड का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा. एंड नाउ वी कम टू द लास्ट रूल, रूल नंबर 23. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट रूल, रूल नंबर 23. Yes, we've reached the end of all the rules that we need to know about where and how to use the capital letter. The last rule states that whenever we are talking about any academic qualification or any title, for example, जब आप कॉलेज में जाते हैं, आप अपने प्रोफेसर्स के रूम्स के बाहर देखते होंगे या मूवीज़ में कोई भी कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा होता है तब देखते होंगे, the name is written and the academic qualification is always written in capital letters. For example, Jolly, LLB, XYZ, MA, राइट. तो ये जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो कैपिटल लेटर्स में आएगी. और इसके साथ ही कोई टाइटल है, जैसे किसी को खेल रत्न अवार्ड मिला है, सो दैट पर्सन इज खेल रत्ना अवॉर्डी. खेल रत्ना जब हम मेंशन करेंगे तो के और आर वहाँ पे कैपिटल आएगा. मिस्टर एंड मिसेस दोनों में एम, मिस्टर में एम और मिसेस में एम दोनों कैपिटल होंगे बिकॉज दीज आर टाइटल. विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ ऑल द रूल्स दैट वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर एंड मेकिंग श्योर दैट राइटिंग में हमारी कोई प्रॉब्लम ना हो.
अभी जब हम बात कर ही रहे हैं रूल्स के बारे में, सो ऑल ऑफ अ सडन आई रिमेंबर दिस रूल। हम लोग कई बार बहुत नंबर्स लिख रहे होते हैं, लाइक वी आर राइटिंग फॉर एग्जाम्पल 21, 24, 82। आई हैव जनरली सीन इट कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो पहले ये गलती कर देते थे। अगर आपको कोई भी नंबर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर राइटिंग 84, नाउ is this a correct way of writing a number? No, it's not. कोई भी नंबर हमें 21 से लेके 99 के बीच में कोई भी नंबर हमें अगर इंग्लिश में लिखना है, लेट्स राइट 21, सो यू विल राइट इट एज 20-1, ओ छोटा टी बड़ा, बट मेक श्योर दैट देयर इज अ हाइफन इन बिटवीन। दिस इज द वन कनेक्टिंग दीज टू। इस तरह से अगर आपने 84 लिखा है, ये गलत है। इसको सही तरीका होगा लिखने का 84। जस्ट एन एड ऑन टिप। इन सब रूल्स को बताते हुए मैंने बीच में एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, नाउन, प्रोनाउन, इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करे हैं। प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। जिसके बारे में रूल्स बताए हैं आप उस पर ध्यान दीजिए। ये सब के बारे में मैं अपकमिंग वीडियोस में आपको एक एक बेसिक, एक एक लॉजिक बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड मेक श्योर दैट यू आर जस्ट गोइंग थ्रू द एंटायर वीडियो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करें एंड मेक श्योर दैट यू गो ahead and write your query in the comments. I will be getting back to you through those queries and I will be mentioning it in the comments and giving you a proper solution for all of them. Stay connected with me. अब जब मैंने आपको ये बता ही दिया है कि नंबर्स को एग्जैक्टली लिखने का क्या तरीका होता है, मतलब क्या सही तरीका होता है, बीच में हमें हाइफन का इस्तेमाल करना होता है, लाइक आई सेड 84। आई जस्ट थॉट आई ऑल्सो टेल यू अबाउट द रोमन नंबर्स। जनरली हम लोग जब इंग्लिश में नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेट्स से 84 इफ़ यू हैव टू राइट, कैन यू थिंक कि रोमन न्यूमरल्स में 83 को कैसे लिखा जाएगा, या 86 को कैसे लिखा जाएगा, 94 को कैसे लिखा जाएगा। 1 2 3 4 हम सबको आता है। मे बी टिल 20 वी कैन मैनेज, 1 to 10 वी कैन मैनेज। 10 इज़ एन एक्स और 20 में 2 एक्स होते हैं, 30 में 3 एक्स होते हैं। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेक यू फॉरवर्ड विद द further numbers. This, you have guessed it correctly, is how we write 10. So 11, 12, 13 ऐसे चलता है। This is your number 20. This is 21, 22 and so on so forth. 30 is triple X, 31, 32. लेकिन इसके बाद हम 40 के लिए क्या लिखेंगे? 4x? नो, 40 विल बी रिटन एज XL. सो अगर मुझे 41 लिखना है तो XL 11, XL 22, XL 33. L is 50. So L1 is 52, L22 is 52, 51, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 79, 80. सिमिलरली इसके आगे 1, 2, 3, 6, so on so forth. What is XC? XC is 90. So 91 will be written as, you guessed it right. अब आपको समझ में आ गया. This is 99 और इसके बाद आता है 100. तो हमने इसको अगर एक्सपैंड करके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लिखना है वो भी समझा, प्लस एज अ टिप, एज एन एड ऑन, अगर आपको किसी को इम्प्रेस करना है और यू वांट टू यूज़ रोमन न्यूमरल्स व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, this is exactly how you will use your Roman numerals for writing numbers. Now I'm going to tell you about another few major, I would say the basics and certain things that you need to know about English. English जैसे हमने आज स्टार्टिंग में समझा था
अल्फ़ाबेट्स पे बेस्ड है, राइट? इन अल्फ़ाबेट्स से होता क्या है, लेट मी टेल यू अबाउट इट। अल्फ़ाबेट्स की हमने बात करी थी। अल्फ़ाबेट्स से क्या बनता है? अल्फ़ाबेट्स से बनते हैं वर्ड्स। वर्ड्स से क्या बनते हैं? सिलेबल। सिलेबल और वर्ड्स, इसमें क्या डिफरेंस है एंड व्हाट एग्जैक्टली इज अ सेंटेंस, आई एम गोइंग टू कवर इट एंड टेल यू अबाउट इट नाउ। हम कोई भी अल्फ़ाबेट्स को अगर नॉर्मल यूसेज में इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल RUN, R, U और N, it makes a meaningful word, not a sentence, it makes a meaningful word, run, या फिर SHOE, shoe। ये दोनों क्या है? ये 4 अल्फ़ाबेट्स का एक वर्ड है विच हैज़ अ मीनिंग। अगर मैं TLXO इसको लिख देती हूँ, डज इट हैव अ मीनिंग? नो, इट डजंट। ये सिर्फ जंबल अल्फ़ाबेट्स मैंने लिखे हैं जिसका कोई मीनिंग नहीं है। ये मैंने अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करके वर्ड लिखा है जिसका कोई ना कोई मीनिंग है। डोंट वरी, वोकैबुलरी भी मैं इंक्रीज़ करने के लिए आपको एट द एंड ऑफ एवरी वीडियो कोई ना कोई कीज़ ज़रूर दूंगी, सो दैट यू डोंट हैव टू मम्बल वर्ड्स। कभी भी वोकैबुलरी को इंक्रीज़ करने के लिए वर्ड्स का रट्टा मत लगाना। A फॉर एप्पल इसका मतलब सेब, B फॉर बोट इसका मतलब नाव, ऐसे नहीं जाएंगे। देयर विल ऑलवेज बी सम कीज़ टू अ वर्ड। कुछ ना कुछ कीज़ होती हैं, जैसे कि अगर कोई भी वर्ड है जिसके पीछे E है या Y है, या इस वर्ड का जो रूट है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी बात करी, जैसे हैंड, हमने बात करी हैंडीमैन की, या फिर हमने बात करी हैंडफुल या फिर हैंडसम, तो इन वर्ड्स में कहीं ना कहीं कोई ना कोई की होगी। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि मैं हर वीडियो के एंड पे आपको इन कीज़ के बारे में बताऊं। कमिंग बैक टू वर्ड्स नाउ, तो ये मीनिंग बन रहा है बिकॉज वी नो अबाउट इट, सो ये वर्ड्स हैं। वर्ड्स को जब हम इकट्ठा करते हैं एंड इट मेक्स अ मीनिंग आउट ऑफ इट, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। बट बिफोर सेंटेंस लेट मी टेल यू अबाउट सिलेबल्स। सिलेबल्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बीइंग प्रोनाउंसिएशन में इसका काफ़ी महत्व है। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हम वन गो अटेम्प्ट में बोल देते हैं, जैसे कि रन, शू, गो, बाक, ये सब क्या है? ये वन सिलेबल वर्ड्स हैं। ऐसे ही कोई भी वर्ड्स जिनको हमें 2 टुकड़ों में बांट के बोलना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिटरली 1 और 2 टुकड़े नहीं करते, लेकिन आपकी जब आप बात करते हो तो देयर इज अ स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल मदर, मदर, राइट? ऐसे जो वर्ड्स हैं उनको हम 2 सिलेबल्स बोलते हैं। एंड देन देर आर फर्दर मोर। फॉर एग्जाम्पल किसी को 3 टुकड़ों में बांटना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल, सो क्रोकोडाइल, ये 3 सिलेबल वर्ड है, राइट? एग्जैक्टली। तो इसी तरह से आपको हमेशा ध्यान देना है। ये आपका थोड़ा बहुत प्रोनाउंसिएशन में इट्स गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। आई एम सो सॉरी, it's going to make a difference. Now let's come to sentences. अब sentences क्या होते हैं? आप फर्ज करें, हमें चले इन्हीं वर्ड्स को हम यूज़ कर लेते हैं। हमने लिखा रन, शू, रेन। आपने इंग्लिश चाहे पढ़ी है चाहे नहीं पढ़ी है, लेकिन इन वर्ड्स को देख के आप समझ जाएंगे कि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, राइट? सो सेंटेंस का मतलब वो होता है, टेंस का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज मीनिंग टू इट। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेट्स गो टू मार्केट फॉर शॉपिंग। ये इंडिविजुअल वर्ड्स हैं जिनको हमने एक साथ इस्तेमाल किया है और एक सेंटेंस बनाया है जिसका कोई मीनिंग है, राइट? सो नाउ वी नो अबाउट वर्ड्स, सिलेबल्स एंड sentences. So now I am going to tell you about the types of sentences. Like we discussed,
सेंटेंसेस क्या होते हैं अब आपको पता है। अब हम बात करेंगे सेंटेंसेस कितनी तरह के होते हैं, सो दैट वेन एवर यू आर टॉकिंग टू समबडी यू कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस बिहाइंड दैट सेंटेंस और दैट स्टेटमेंट, or when you are writing something you will understand whether you have to use a question mark or you have to use an exclamation mark at the end of it. The first type of sentence that we are going to talk about is declarative sentence. इसे हम assertive भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि एक बात है जो बताई गई है आपको in a very simple language. For example, we all know about the poem Humpty Dumpty sat on a wall, right? So let's write Humpty sat on a wall. आपने एक बात है जो आपने नॉर्मल बता दी है, सो दैट कम्स अंडर योर डेक्लरेटिव सेंटेंस। लेट्स टॉक अबाउट इम्पेरेटिव स्टेटमेंट। इम्पेरेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे आप कुछ कमांड दे रहे हैं, गो टू योर क्लास, यू आर टेलिंग समबडी टू डू समथिंग, राइट? दैट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। वाई एन? क्योंकि ये आई से स्टार्ट हुआ है। रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट कोई भी वर्ड्स अगर वोवल से स्टार्ट होते हैं तो उससे पहले एन आता है। सेम लॉजिक इज हियर। सो हियर लेट्स से मोस्ट ऑफ द मॉम्स जब काम करती हैं और बच्चे परेशान करते हैं तो बोलते हैं गो टू योर रूम। यू आर कमांडिंग समबडी टू डू समथिंग। इंटेरोगेटरी, आई एम श्योर ये बहुत सारे बच्चों को खुद ही पता होगा। इंटेरोगेशन जैसे पुलिस केसेस जो होते हैं कि आपको इंटेरोगेट किया जा रहा है या हम इंटेरोगेशन कर रहे हैं, अभी हमें पता चलेगा। सो इंटेरोगेशन इज व्हेन यू आर इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग, वेर इन यू आर आस्किंग समथिंग। डिड यू गो टू स्कूल? लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आप एक सवाल पूछ रहे हैं। अब जनरली स्पोकन लैंग्वेज में जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, द रिप्लाई हैज़ टू बी एन आंसर बिकॉज यू हैव बीन आस्क्ड अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, विल यू हैव सम बिस्किट? योर रिप्लाई वुड बी येस श्योर, आई वुड लव टू, नो आई एम फीलिंग प्रिटी फुल, आई वुड नॉट। तो एक सवाल पूछा गया और आपने उसका जवाब दिया। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें इंटेरोगेटरी क्वेश्चन बोला जाता है। देन इज योर एक्सक्लेमेटरी, ईजीएस्ट वन, जहाँ पर भी आपको किसी भी इमोशन के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन मिलता है, ओ गॉड और हुर्रे वी वन, ये वी डिड इट। तो इस तरह की जो एक इमोशन है जहाँ पे आपकी भावनाएं बहुत अच्छे से निकल करके आ रही हैं एंड यू आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट, इसको याद करने का आप तरीका रख सकते हैं। एनीवेयर वेयर यू फील एक्साइटेड, EXC, एक्साइटेड। इंटेरोगेट ऐसे याद करो कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेट कर रहे हो आप किसी को, आपने ये किया क्या, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, दीज आर ऑल द थिंग्स, ऑल द वर्ड्स दैट वी यूज टू आस्क अ क्वेश्चन। वेयर आर यू, हाउ आर यू, व्हाट डिड यू डू, राइट? सो ये सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होंगे, ये सब हमारे इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस होंगे। इम्पेरेटिव, टेक इट लाइक कमांड, जहाँ पे कमांड आ रही है वहाँ पे वो हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस हो रहा है। एंड डिक्लेरेटिव, जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, कुछ भी बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मल जो हमारा डिस्कशन चल रहा है वो हमारा इस कैटेगरी में फॉल होता है। सो दीज आर योर 4 टाइप्स ऑफ sentences. Now you know about the types of sentences. I request you to kindly go ahead and mark some sentences and try and figure out what exactly is the type of sentence you are reading about, right? I know it has been a little long video and you must have been maybe a little bored, but trust me, जब तक आपको ये बेसिक्स जो आज हमने कवर किए हैं, हमने अल्फ़ाबेट्स कवर किए, हमने साउंड को कवर किया है, एंड द रीज़न वॉज टू अंडरस्टैंड कि कौन सी साउंड में कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, सो दैट वी डोंट मेक एनी मिस्टेक व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग इट और व्हेन वी आर राइटिंग अ वर्ड, राइट? आफ्टर दैट आई ऑल्सो गेव यू सर्टेन इंसाइट टूवर्ड्स द आर्टिकल्स ऑफ ए एंड द। वॉवल्स, जब भी कोई वर्ड हम स्टार्ट करते हैं वॉवल से, उससे पहले एन आएगा,
कॉन्सोनेंट्स में अ आएगा एंड पर्टिकुलर प्रॉपर में द आएगा. आफ्टर दैट आई ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट सर्टन सीक्वेंसेज अबाउट हिंदी मात्रास, कि अगर कोई हिंदी की मात्रा है और आपको उसका वर्ड बनाना है लाइक क, का, की, के, all of that jazz, right? Please make sure that you practice it. Trust me, English is a language. It's not difficult at all. You need to have a good hand. You need to have a strong hand over the grammar, and I'm here with you for that, right? मैंने आपको कैपिटल अल्फ़ाबेट को इस्तेमाल करने के बारे में बताया, बिकॉज whenever you are writing, आप IELTS का एग्ज़ाम लिख रहे हो या फिर आप कोई भी बैंक वगैरह के एग्ज़ाम को क्रैक करना चाह रहे हो, फॉर दैट मैटर इवन व्हेन यू आर राइटिंग योर SOP, अगर आपको किसी बाहर की कॉलेज में जाके एडमिशन लेना है तो आपको एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP लिखनी पड़ती है. यू हैव टू राइट इट ऑन योर ओन. सो यू नीड टू नो द बेसिक्स ऑफ हाउ राइट यू हैव रिटन. राइट मीन्स RIGHT, कितना करेक्ट आपने लिखा है. अगर आपका स्टेटमेंट में, आपके सेंटेंसेस में ये छोटी छोटी चीज़ें, द टिप्स एंड ट्रिक्स दैट आर शेयर्ड विद यू टुडे इन टुडेज वीडियो, अगर ये मिसिंग है, यू लूज मार्क्स एंड दैट माइट हैम्पर योर एडमिशन एज वेल. सो यूसेज ऑफ कैपिटल लेटर इन writing words and further in the sentences, make sure you revise all those 23 rules. उसके साथ साथ as an add-on, I even told you about the correct way of writing numbers in English. 83, 86, 99, 21 से लेके 99 तक जब आप ये words लिखेंगे तो बीच में hyphen ज़रूर आएगा, right? We discussed about Roman numerals. Just as an add-on, just as a value addition to your writing skills, कि Roman numerals में 10, 20, 30, 40 किस तरह से लिखा जाता है. I even told you about the parts such as sentences, types of sentences. Then we discussed about syllables, we discussed about clause and phrase. बहुत ज़्यादा अपने आप को overburden मत करना. ये सभी को मैं एक एक इंडिविजुअल वीडियोस की तरह भी आपके साथ शेयर करूँगी, जस्ट टू गिव यू अ नुआंस, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइट. एक थोड़ा सा ट्रेलर है ये, बाकी सब लॉजिक्स बिल्कुल परफेक्ट है. ये थोड़ा सा ट्रेलर है जिसके लिए एक एक इंडिविजुअल वीडियो विद सर्टन एक्सरसाइजेज आई विल बी शेयरिंग विद यू. वन थिंग दैट वी फॉरगेट अबाउट इज, हमें सिर्फ सुनने से इंग्लिश नहीं आएगी. आई विल बी गिविंग यू वेरी स्मॉल टास्क, और उसके साथ साथ हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कैसे बढ़ाना है उसकी भी कुछ एक्सरसाइजेज हैं. हाउ टू स्टे मोटिवेटेड. मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है. जब आप किसी जगह, नई जगह जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं या कहीं पे भी ज्वाइन करते हैं, देयर आर पीपल हु माइट काइंड ऑफ बुली यू and try to demotivate you, or maybe make fun of you at times for not speaking it correctly, or maybe feeling a little shy when you are speaking. Do not worry about anything. Self-motivation, personality development, studying abroad, cracking exams, everything, public speaking. खड़े होके 2000 आदमियों के सामने भी बोलना पड़ेगा, तब भी कॉन्फिडेंस से बोलोगे. दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर विद मी, मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग ऑल द वीडियोज़. आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई चैनल, बट द थॉट इज़ कि मैं जितना सीखी हूँ या मैं आज यहाँ पे खड़े होके आपको जिस तरह से सिखा पा रही हूँ, आई जस्ट वॉन्ट कि आप सब में भी उतना कॉन्फिडेंस आ जाए, एंड वी विल मेक श्योर दैट you learn all 4 foundational skills of English. Thank you.